Now, to start this chapter, permutations and combinations, you must have a concept of factorial. And what is factorial? Factorial is a representation, is a way of representing the product of n natural numbers. Like for example, we have suppose 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So we have represented the product of, I've written here product of how many natural numbers? Here I've written the product of first 5 natural numbers. It can also be written as 5 factorial. ये जो last day बहुत लोग बोल रहे थे इसको exclamation mark. This is the fact symbol of factorial. So this is 5 factorial. Also written as 5 और ये भी factorial का symbol है. But we are going to choose this symbolic representation. Okay. So we can say that what is the meaning of factorial? Factorial is the method of representing the product of n natural numbers. Okay. First, n consecutive natural numbers. So you are finding that you have consecutive 5 natural numbers, that is 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So we find that यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला 5 नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको 5 फैक्टोरियल से डिनोट कर रहे हैं. So exactly same way 1 into 2 into 3 into 4 dot till n को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n factorial, also written as this symbol. Okay, but as I said you that अब हम लोग ये वाला symbol यूज करेंगे. इस symbol को कभी अब हम मेंशन नहीं करेंगे. Next, now we find that the value of 1 factorial is 1 because as you know that n factorial means the product of first n consecutive natural numbers. So 1 factorial means 1 itself and the value of 0 factorial is also 1. Last day मैंने बताया था कि 0 factorial क्यों 1 होता है? Why it is 1? इसका मैं रीजन बताऊंगा when I start permutations, this particular topic permutations. But for अभी फिलहाल के लिए 0 factorial is equals to 1. You just note it down and when we use it. Okay, that's all. Next. इसके बाद हम लोग को सबसे पहला चीज इसमें जानना ये है, जैसे हम लोगों ने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है. ठीक है. एग्जैक्टली सेम वे n फैक्टोरियल का मतलब n into factorial नहीं होता है. So make sure that n factorial is complete mathematical unit where n and factorial are not two different entities which gets multiplied and it becomes n factorial. ऐसा नहीं है. n factorial is a complete sense in mathematics. Next, we find that ये मैंने last day भी बताया था कि 3 factorial plus 2 factorial is not equals to 3 plus 2 का whole factorial. Next, 3 factorial minus 2 factorial is not same as 3 minus 2 का whole factorial. 3 factorial divided by 2 factorial is not same as 3 by 2 का whole factorial. And make sure that कभी भी fraction का factorial भी exist नहीं करता है. Clear? Because factorial का मतलब क्या होता है? जैसे n factorial है, so the product of first n consecutive natural numbers. Are you understanding everyone? So एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 by 2 factorial लिखूं, तो ये तो fraction है, तो ये 3 by 2 is not a natural number. So that's why fraction का factorial नहीं होता है. ठीक है. 3 by 2 factorial is not possible. Also note down, negative numbers का भी factorial possible नहीं है. It's not possible. Fraction और negative numbers का factorial possible नहीं है. Okay. And finally we can say that 3 factorial into 2 factorial is not same as 3 into 2 whole factorial. Clear? These are the points which you must keep in mind. Next. Number 3, I'll show you how to do the working based on factorial. मतलब कोई भी अगर मान लो एक्सप्रेशन factorial पे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं? Let us see these things now. Now let us take the first example. Suppose we have 10 factorial divided by 8 factorial. Let's take this sum. Now you know that the meaning of factorial is what? जैसे कि यहाँ पे मैं 10 factorial लिखा हूँ मैंने, तो 10 factorial का मतलब क्या होता है? 10 into 9 into 8 7 6 5 4 3 2 1. Am I correct?
बट यू आर नॉट गोइंग टू राइट टिल दैट टिल 1. हम लोग को पता है कि 10 और 8 में देखो 10 फैक्टोरियल में और 8 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है? 10 फैक्टोरियल. Now 10 factorial can be written as 10 into 9, 8 into 6, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 को ना लिख करके हम इसको 8 फैक्टोरियल तक लिख करके इसको हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं. So that the calculation will become very simple. Are you understanding? 8 10 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है. इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 10 फैक्टोरियल. तो उसको मैं रिड्यूस किया, ठीक है. इसके बाद मैंने 8 के बाद मैंने 8 7 ऐसे नहीं लिखा बिकॉज हमको पता है कि 10 फैक्टोरियल मींस 10 से लेके 1 तक जितना नेचुरल नंबर्स है उन सब का प्रोडक्ट. तो क्या मैं इसको 10 into 9 के बाद 8 फैक्टोरियल लिख के काट सकता हूँ? यस. एंड एज अ रिजल्ट वी आर फाइंडिंग दैट इट इज इक्वल्स टू 90. And this is the reason why, suppose if we have 9n factorial divided by n minus 2 factorial, let's take, for example. Okay, suppose we have n factorial by n minus 2 factorial. इसको हम कैसे reduce करेंगे? ध्यान से एक बार नोट करना. जैसे कि यहाँ पे 10 factorial और 8 factorial में बड़ा 10 factorial था, which is greater among these two number, numerator and denominator, 10 factorial. तो मैंने इसको reduce किया, क्योंकि 10 का फैक्टोरियल मतलब 10 उससे एक कम 1 तक. एग्जैक्टली सेम वे 9n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? n. क्लियर? नाउ व्हाट इज 1 लेस देन n? देखो जैसे कि मैंने 10 लिख दिया, 10 से एक कम कितना होता है? 9. n से एक कम कितना होता है? n minus 1. ठीक है. उसके बाद n minus 1 से एक कम, व्हाट इज 1 लेस देन n minus 1? इट इज n minus 2. नाउ क्या मैं इसको ऐसे ही 1, क्या मैं यू नो दैट किसी भी नेचुरल नंबर, इफ n डिनोट्स अ नेचुरल नंबर, तो क्या मैं इस नंबर का फैक्टोरियल को मैं क्या 1 तक में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस. बट एज वी आर फाइंडिंग इन द डिनोमिनेटर वी हैव n minus 2 factorial, so can I write this as n minus 1, n minus 2 factorial? As a result we find that n minus 2 factorial gets cancelled, and what is the result? It is n into n minus 1. Are you understanding my point? I'll give you one more example. Suppose we have n plus 2 factorial divided by n factorial. तो बताओ तो एक बार इन दोनों में बड़ा कौन सा है? न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर? बताओ. यस. Which is greater इन दोनों में? बताओ. Yes, I did not hear. Just tell me, repeat once again. न्यूमरेटर. जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर 10 factorial बड़ा था, n plus 2 factorial n factorial के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे. जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे हम? 7 के एक कम 6, 6 से एक कम 5. अब उससे हम कम रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज वी नो दैट डिनोमिनेटर इज 5 फैक्टोरियल, सो एज अ रिजल्ट 5 फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल्ड. इन दोनों में हम ये बड़ा है तो इसको रिड्यूस कब तक करेंगे? जैसे n plus 2 लिख दिया मैंने, n plus 2 से एक कम कितना होता है? n plus 1. चेक द डिनोमिनेटर, ये n फैक्टोरियल है. n plus 1 से एक कम कितना होता है? n. यहाँ पे n फैक्टोरियल है, अब इसको n फैक्टोरियल लिख दो बिकॉज हमको पता है कि अगर वो जैसे 10 है 10 फैक्टोरियल, तो जैसे ये 10 into 9 उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 तक है ना, इतना इस चीज के बाद हम लोग 8 7 6 ऐसे ना लिख करके 8 फैक्टोरियल लिख के हम लोग कैंसिल कर दिया उन्होंने. वैसे इसको मैंने n plus 2 उससे एक कम n plus 1 उससे एक कम क्या हो गया? n फैक्टोरियल. मैंने यहाँ तक लिख के क्या करेंगे? हम इसको n फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे. सो एज अ रिजल्ट this is the expression in most reduced form. ठीक है. इसको हम लोगों ने रिड्यूस करके ऐसे लिख दिया. Is this okay or not everyone? Now I want everyone, क्योंकि थोड़ा मैं लास्ट डे टाइम की वजह से मैं थोड़ा फटाफट चला गया और समझ में भी नहीं आया, हो सकता है, तो एक बार फटाफट ये सब चीज कॉपी करो जल्दी से. और अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं भी इरेज नहीं कर रहा हूँ, एक बार पूछ लो जो भी डाउट है. Whatever things you want to clear, please clear your doubts. I'm just keeping things everything on the board here. लास्ट क्या? मतलब ये मल्टीप्लाई करना है इसको, वो तो ऑप्शनल है, वो तो तुम लोगों को पता है, तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया यहाँ तक. एक्चुअली हम लोग का ऑब्जेक्टिव मेन यहाँ पे समझाना मेरा ये था कि फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. इसके बाद तो क्वेश्चन के हिसाब से जो होगा वो तुम लोग कर लेना. ठीक है. अगर क्वेश्चन में वो डिपेंड करता है सब के ऊपर, तो यहाँ पे एक बार हम मेन चीज है कि तुम लोग को ये समझ में आया तो कि कैसे रिड्यूस होके कैंसिल हुआ.
रिड्यूस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. Now I'm erasing this, okay? I hope everyone is copied. If you are copying, you can just interrupt, okay? And you can just say that I'm still copying. I can just wait for a few minutes. Okay, let's copy it. And is there anything which is not clear here? Anything here? Now see, let's move ahead. Now, number 4. So I explain you how to reduce, okay? How to reduce, I mean, expressions जिसमें फैक्टोरियल होगा. फैक्टोरियल वाला एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है मैंने बताया ये चीज. अब नेक्स्ट ध्यान देना एक बार. ना लास्ट डे भी मैंने ये चीज बताया था कि कैसे हम लोग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव 5, देन यू हैव सपोज यू हैव 6 into 5 into 4, ओके. मान लो इसको हमको फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. ना जैसे यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, इस पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, यू नो दैट 6 है, 5 है, 4 है, और क्या चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ तो. क्या क्या चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ तो. यस, 3 to 1, 3 into 2 into 1. Now just tell me everyone, what is 3 into 2 into 1 written as? Can I write it as 3 factorial? Clear? Now just note down 3 factorial into 4. 3 factorial into 4 is written as what? 4 factorial. 4 factorial into 5 is written as what? 5 factorial. तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? 3 factorial का मतलब हो गया 3 into 2 into 1, और इसके आगे 4 into 5 into 6 है. तो क्या मैं डायरेक्ट इसको 6 factorial by 3 factorial लिख सकता हूँ मैं? Just note down everyone. 6 है, 5 है, 4 है, और यहाँ पे 6 factorial by 3 factorial है. तो इसको तो इसको हम क्या किया मैंने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 3 factorial से मल्टीप्लाई कर दिया. एज ए रिजल्ट ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? पूरा फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ सपोज वी हैव गॉट, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला. सपोज यहाँ पे 2 into 1 है, ठीक है, उसके बाद 2 into 2 है, उसके बाद 2 into 3 है. मैं एक बात बताओ, इसका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कोई बता सकता है? मतलब बोलो तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Anyone? मतलब जरूरी नहीं कि पूरा चीज फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. हो सकता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कुछ हो और कुछ पार्ट. वेरी गुड, एग्जैक्टली. ओके, इट इज 8 into 3 फैक्टोरियल. कैसे देखना एक बार ध्यान से एक बार नोट करिए. वी हैव 2 into 2 into 2. एक बात बताओ, 2 कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में बताओ तो. 2 कितने बार प्रोडक्ट फॉर्म में? 3 बार. 1 2 3. तो अगर 2 3 बार प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3. उसके बाद बचा क्या? 1 into 2 into 3. Now what is 1 into 2 into 3 written as? Can I write it as 3 factorial? So I can write this as 2 to the power 3 into 3 factorial. Now next. Now tell me, so what is 2 into 1 into 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, dot 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 2 into 10? Yes, can you tell me इसका क्या होगा आंसर बताओ तो. Yes, बोलो. Correct. 2 to the power 10 into 10 factorial is the correct answer. Why? See, you don't think that यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं. मैंने याद है बताया था लास्ट डे, ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है? डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन. मतलब ये इस ऑर्डर में, मतलब इस पैटर्न में ये चलते जा रहे हैं. कहां तक रुक रहा है? मतलब कहां जाके रुक रहा है? 2 into 10 तक. तो इस पैटर्न को समझो पहले तुम लोग कि 2 into 1 है, 2 into 2 है, 2 into 3 है, 2 into 4 है.
इसका मतलब 2 into 5 आएगा, 2 into 6 आएगा, 2 into 7 आएगा, और 2 into 10 will be the last factor. तो यहाँ पे 2 कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में? 10 बार. कैसे पता चला कि 2 1 के साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 2 के साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 3 के साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 4 के साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में, और 2 10 के साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में. तो यहाँ पे कितना नेचुरल नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो 10 फैक्टोरियल हो गया. और 2 कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में? 10 बार, तो 2 to the power 10 into 10 फैक्टोरियल हो गया. सो एक बात बता लास्ट, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into n minus 1 and 2 into n. इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? Yes. Yes, it is 2 to the power n into n factorial. Because we are finding that we have got 1, 2, 3, so on till n. कितने नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे? कितने नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है? यहाँ पे टोटल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो ये n फैक्टोरियल हो गया. और 2 हर एक के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो 2 अगर 3 बार प्रोडक्ट फॉर्म है तो 2 to the power 3, 10 बार है तो 2 to the power 10, अगर n बार प्रोडक्ट फॉर्म है तो कितना होगा? 2 to the power n. Okay, so everyone copy down all these things. These are very important things. We have to use these things in the sums, okay, calculation part. जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 into 1 है. जैसे यहाँ पे एक बार पहले ये चीज समझो, पहले ये समझोगे तभी जाके ये समझ में आएगा. बात को ध्यान से समझना. ये 2 into 1 है, 2 into 2 है, 2 into 3 है. इसका मतलब 2 कितना बार मल्टीप्लाइड है, कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? 3 बार, तो 2 to the power 3 हो गया. तो 1 into 2 into 3 बचा, तो ये 1 into 2 into 3 को 3 फैक्टोरियल होती है. एग्जैक्टली सेम वे इसको क्या किया मैंने? 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, डॉट डॉट 2 into 10 तक है. मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक है. मतलब कितना नेचुरल नंबर्स है? 10. तो 10 फैक्टोरियल हो गया. और हर एक नेचुरल नंबर्स के साथ 2 प्रोडक्ट फॉर्म में. इसका मतलब 2 10 बार प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 2 to the power 10 हो गया. सेम वे यहाँ पे 1 into 2 into 3 into डॉट डॉट टिल n है. देखो कहाँ तक है? 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स है. 1 से लेके n तक है, तो n फैक्टोरियल हो गया. जैसे 1 से लेके 10 तक 10 फैक्टोरियल हो गया. और यहाँ पे 2 हर एक के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में था, तो 2 to the power 10 हो गया. यहाँ पे भी 2 हर एक के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 2 to the power n हो जाएगा. This is okay. Once again I'll write this as, can I write this as 2 to the power n 1 2 3 dot 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 n minus 1 into n. तो यहाँ पे इसका मतलब 2 n बार प्रोडक्ट फॉर्म में था, तो 2 to the power n हो गया. और यहाँ पे कितना नेचुरल नंबर्स है? n नेचुरल नंबर्स है, तो ये 2 to the power n into n फैक्टोरियल हो जाएगा. ओके, नंबर 4 का पूरा मतलब ये वाला सिर्फ फर्स्ट वाला. ओके फाइन. ओके देखो फिर से, जैसे यहाँ पे 6 5 4 है. तुमको पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, किसी भी नेचुरल नंबर का मैं फैक्टोरियल अगर लिखूं, जैसे मान लो मैं 6 फैक्टोरियल लिखा है मैंने, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 into 5, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. यहाँ पे इस पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 into 5 into 4 है. इस पूरा चेन का, फैक्टोरियल का पूरा चेन को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? 3 to 1 का मतलब 3 फैक्टोरियल होता है. ये पूरा क्या हो गया देखो, समझ में? कॉपी. now today we are going to start now this, okay, the questions. Okay, जो मैंने वहाँ यहाँ भेजा है आज तुम लोग को, देखो एक बार पीडीएफ भेजा है 3 पेज का. बाकी सब क्वेश्चंस कल तक मिल जाएगा. ओके, और पीडीएफ से कर लोगे, तुमको कुछ और करने का 1% जरूरत नहीं पड़ेगा, और 100% सम यहीं से आएगा. ठीक है,
और मैं क्या करूंगा पता है तुम लोग के लिए कि ये जो गर्ल्स बैच में सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो सारा तो सिलेबस में है नहीं तुम लोग का, तो वो मैं रिकॉर्डिंग करके रख रहा हूँ, जैसे लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो फटाफट वो रिकॉर्डिंग देके और मैं सारा डाउट सॉल्व करा दूंगा, मेन जो है पार्ट वो करा दूंगा मैं डाउट सॉल्व, तो इससे टाइम नहीं लगेगा। सो डोंट वरी फॉर द सिलेबस, सिलेबस आराम से हो जाएगा, बस तुम लोग जो कर रहे हैं वो प्रॉपरली करो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो मैंने पीडीएफ भेजा है, ठीक है, ध्यान देना। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ना एक और चीज, जो प्रॉब्लम हमसे वहां मैंने आंसर दिया है, देखो वहां मैंने आंसर लिखा है, बट मैंने वो सब स्टार्टिंग का जो सम्स है ना वो सब में आंसर नहीं लिखा है। मैं कोशिश करूंगा जब इसका नेक्स्ट पीडीएफ इसका जो जब हम देंगे तो ये बगल में हम आंसर लिख दें, लेकिन आगे जितना प्रॉब्लम सम्स होगा उसमें आंसर जरूर लिखा रहेगा। अब सी क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग को सारे सम्स में इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सारा सम्स हम लोग को इवैल्यूएट करना है, तो पहला क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इन सब में तीनों फैक्टर्स में तीनों का फैक्टोरियल में सबसे बड़ा कौन सा है? 9 फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 7 सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, बिकॉज 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो ये सबसे बड़ा है, उससे ये छोटा है, ये उससे छोटा है, तो इन दोनों को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। 9 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। Why I've written 5 factorial? Because denominator का जो ये 5 factorial है ये cancel हो जाएगा, okay? Next we have 9 into 8 into 7 into 6. We can write 3 factorial as 3 into 2 into 1, which is 6. इसको multiply कर लो, this is your answer. So you are going to calculate this way. ये नहीं कि ऐसे calculation किया 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into ऐसे करके, ये तरीका नहीं, ये सब तरीका अप्लाई मत करना। ऐसा नहीं कि आंसर रॉन्ग है, बट ये तरीका से अगर करोगे तो फिर मान लो ऊपर 100 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में मान लो 95 फैक्टोरियल है इंटू 10 फैक्टोरियल, तब तो करते रह जाओगे। 100 फैक्टोरियल को पूरा 1 से लेके 100 तक लिखोगे, फिर इसको 1 से लेके 95 तक फिर काटना पड़ेगा, काटोगे वैसे नहीं, it will become very complicated. So that's why you have to follow this simple techniques, these simple techniques of calculation of factorial numbers. Okay, so the result is 9 into 8 into 7. You can multiply with the help of calculator you have and get the answer. Next, now your task is 504. Now your task is everyone to sum number a का नंबर 4, फटाफट करो तो 4 नंबर, उसके बाद नंबर बी का सारा सम्स करना है, बी का चारों सम्स करना है। अब सुनना एक बार, ए का नंबर 4 और बी का 4 सम्स है, चारों सम्स ट्राई करो। मैंने लेकिन पीडीएफ तो भेज दिया, लेकिन मैंने दिस इज द क्वेश्चन, इसका आंसर 1 2 ऐसे क्या आंसर था, ये लास्ट भी किया हुआ था। हाँ कितना है, 1 2 करेक्ट है, 1310 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करो फटाफट, और उसके बाद बी का सारा सम्स, ओके, बी के अंदर 4 सम्स है, ओके, सारा को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डू फास्ट। बता दो, देखना एक बार। ए का स्मॉल ए का नंबर 4 वो तो हो गया, बोर्ड पे मैं कर रहा हूं अगर डाउट है तो, और बी का चारों सम्स, डू ऑल 4।
नाउ सी, सबसे पहले इन दोनों में से हम कॉमन पहले सोचेंगे, कॉमन क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल में ग्रेटर 12 फैक्टोरियल है, सो आई कैन राइट दिस एज 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा देखना एक बार, समझ में आया। तो 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल तक मैंने स्टॉप कर दिया, क्यों, इन दोनों में से 10 फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा 12 into 11 minus 1, यहां से 10 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, 12 into 11 माइनस यहां से 10 फैक्टोरियल कॉमन चला गया तो 1। I can write 10 factorial as 10 into 9 factorial. Why? Because यहाँ पे 9 factorial है, तो ये 9 factorial cancel हो जाएगा। 12 into 11 is how much? 132. That is 13. 10 into 131. 1310. और B का चारों सब्स करो अभी सबको। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन फैक्टोरियल नोटेशन। ना बी जिसका डाउट है एक बार देखें। हाँ करेक्ट है। एक मिनट, हाँ सी यहाँ पे 12 11 10 9 8 7 6 5 है। पूरा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरा चीज को यहाँ पे क्या चीज और मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज यू नो दैट किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल मतलब वो वहां से स्टार्ट होता है और 1 तक हो जाएगा प्रोडक्ट उसका। तो यहाँ पे हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 5 से लेकर 12 तक पूरा सारा नेचुरल नंबर्स है, देखो सारा नेचुरल नंबर्स है बिना कोई ब्रेक का, ओके। और इसको पूरा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 4 into 3 into 2 into 1 होना चाहिए। नाउ व्हाट इज 4 into 3 into 2 into 1? इट इज 4 फैक्टोरियल। इस पूरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 12 तक क्या हो गया, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। टू थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 हो जाएगा। 2 और 3 एक जैसे ही है। एक सेकंड, जस्ट कौन सा नंबर? हाँ 3 to the power 3 to the power 5 into 5 फैक्टोरियल। नाउ जिसका नंबर 2 डाउट एक बार देखना। एक बार मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ओके जस्ट। नाउ सी नंबर बी का नंबर 2, I can write this as 3 into 1, 6 as 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5। इसका मतलब we have 1 into 2 into 3 into 4 into 5 which is 5 factorial। और 3 कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में, 5 बार, 5 बार, ओके 5 टाइम्स, सॉरी 5 बार, ओके। सो ये हो जाएगा 3 to the power 5 into 5 factorial। दिस इज द आंसर। 2 and 3 is exactly same, कोई डिफरेंस नहीं है।
नंबर 5 में अगर किसी का डाउट है तो मैं बता, सॉरी 4 में मैं बताऊंगा, लेकिन 3 पहले ट्राई करो 2 के बाद। जिसका 2 में डाउट था 3 एक बार तुम लोग ट्राई करो। थ्री नंबर हो गया सबका। कीप योर मोबाइल इन साइलेंट, डिवाइस इन साइलेंट मोड। कीप योर डिवाइस इन साइलेंट, कीप योर डिवाइस इन साइलेंट। Please, very well, I mean, during the class, make sure that your device is, I mean, in mute mode, okay? Because तुम घर में क्या conversation कर रहे हो वो भी सब कोई सुन रहा है, so make sure that you be careful. When you have to ask something, that time you unmute your device. Now see, so this is 2 to the power 5 into 5 factorial, okay? Clear? Now I'll explain you number 4. देखो 4 थोड़ा different type sum है। बाकी सब में क्या था, वो एकदम सीधा दिया हुआ था फैक्टोरियल के फॉर्म में, बस उसको हम लोग को पहचानना था कि क्या क्या मतलब किस फॉर्म, मतलब कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या, यस, वेरी गुड। ना सी, ये वाले सब में क्या है, ये वाला सब में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो देखो सबसे पहला चीज, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल में जैसे कि 1 से तो स्टार्ट होता ही है। नाउ यू नो दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 तो यहाँ लिख दो। 1 के बाद क्या आएगा 2, तो पहले हम इस नंबर्स को पहले फैक्टराइज कर देते हैं, पहले इसको 12 और 32 को। 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, और 32 को फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 के बाद क्या आएगा 2, एक 2 को काट दो और यहाँ पे 2 लिख दो। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 यहाँ पे है। 3 के बाद क्या आएगा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल कर देना और यहाँ 4 लिख देना, समझ में। 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 यहाँ पे है। 5 के बाद क्या आएगा 6, 2 3 जा 6 कैंसिल कर देना। 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 यहाँ पे है। 7 के बाद क्या आएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल कर दो। और कुछ बचा नहीं। ये पूरा चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 into 4 5 6 into 7 into 8, and what is this, this is 8 factorial. Is this clear everyone? or shall I explain once again? समझ में ये वाला टेक्निक तुम लोगों को, इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी तुम्हारा ऑड नंबर्स है वो छोड़ दो, ऑड नंबर्स को, प्राइम नंबर्स एक्चुअली नॉट ऑड नंबर्स, जो प्राइम फैक्टर्स है वो छोड़ दो, बाकी सारे को फैक्टराइज कर दो और स्टार्ट करो। जैसे 1, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, उसके बाद क्या आना चाहिए 2, 2 ये 3 5 7 है, 3 5 7 में 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है बिकॉज ये तो प्राइम फैक्टर्स है, इसमें तो कोई और फैक्टर होगा ही नहीं। 2 यहाँ पे लिख के कैंसिल कर दो उसको। 2 के बाद 3 3 ये रहा, 3 के बाद 4, 2 2 जा 4, 2 है, 2 और 2 को कैंसिल कर देना, यहाँ 4 लिख देना। 4 के बाद 5 यहाँ पे है, 6 2 3 सॉरी 3 2 जा 6 कैंसिल कर देना 2 और 3 को। 7 उसके बाद 8, 8 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8, सब फैक्टर्स कैंसिल हो गए। दिस दैट्स इट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कॉपी डाउन एंड नाउ विल स्टार्ट। सो ये सब टेक्निक को जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया। तो ये सब सम्स बहुत, मतलब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये काफी इस टाइप का सम आ सकता है, समझ में आया। तो बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसी टाइप का सम आएगा जहां पे तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर तुम ये टेक्निक फॉलो करोगे फटाफट हो जाएगा, अगर तुम वही बहुत लंबा मेथड फॉलो करोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्या मतलब चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट कीप इन माइंड, ओके, व्हाइल कन्वर्टिंग इन फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर सी का मैं नंबर 1 बताता हूँ, एक सम, बाकी तुम लोग एक बार ट्राई करो।
सो आई वांट योर अटेंशन हियर। ये आप उनको n का वैल्यू निकालना है, ओके? तो ध्यान देने का सबसे पहला चीज, मुझे तो पहले फैक्टोरियल हटाना है। फैक्टोरियल रहेगा तो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेट, मतलब फैक्टोरियल के टर्म्स में कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले मैं फैक्टोरियल हटाऊं, ओके? नाउ टेल मी n+2 फैक्टोरियल में एंड n-1 फैक्टोरियल में ग्रेटर कौन सा है इन दोनों फैक्टर्स में, बताओ तो? इसमें और इसमें ग्रेटर कौन सा है, बोलो? n+2। नाउ सी, तो क्या मैं n+2 फैक्टोरियल को n+2 into what is 1 less than n+2? 1 less than n+2 is n+1। क्या राइट साइड में n+1 है? नहीं। इसको और रिड्यूस करते हैं, n n है राइट में? नहीं। n से एक काम कितना होता है? n-1। अब हम यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल लिख देंगे, बिकॉज हमको पता है कि फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का जब फैक्टोरियल होता है तो वो नंबर से स्टार्ट होते हैं और एक एक कम, देखो 7-1 6, 6-1 5, वो कहां तक रिड्यूस होके चलते जाते हैं? 1 तक। n+2 एक कम n+1, उससे एक कम n, उससे एक कम n-1, राइट में n-1 फैक्टोरियल है, तो यहां तक रोक दो, यहां तक फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दो। इससे क्या होगा देखना है, you can cancel n-1 factorial, and what is left? On the left hand side we have n+2 into n+1 into n equals to 60. All right everyone, tell me if you have doubt in here. If you have doubt in here, just let me know once. Now listen here, next. इसके बाद बहुत लोग क्या कर रहे होगा, जो लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, हमको पता है उन लोग क्या कर रहे होगा, I know that. तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। Avoid this, because the sum will become very complicated, because you get this equation in terms of n, जिसका पावर क्या होगा? 3, मतलब क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा और उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें। एक बात बताओ तुम लोग, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में कितने चीज का प्रोडक्ट है, बताओ तो? कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स? फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट फॉर्म। कितना? 3 चीज का प्रोडक्ट है, 1 2 और 3 चीज ना। पहला फैक्टर से दूसरा फैक्टर कितना कम है? 1 1 लेस। दूसरा फैक्टर से तीसरा फैक्टर कितना कम है? 1 लेस। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन you have 3 consecutive factors? Can I say that you have got 3 consecutive factors in descending order? Can I say? देखो descending order में है, okay? Now see, let us factorize 60 also. Okay, let us factorize this number to 60, and let us write 60 also as a product of 3 factors, 3 consecutive factors. I repeat, let us write 60 as a product of 3 consecutive factors such that the product is 60 and they are in descending order. Why I am using this word descending order? Because on the left hand side, these 3 factors are in descending order and these are 3 consecutive factors. So who can tell me that 60 can be written as in 3 consecutive factors as what? 60 upon 3. 5 into 4 into 3. 5 into 4 into 3. Because I said just now that you have to represent 60 as a product of 3 factors. Keep product of 3 consecutive factors in descending order. Descending, देखो 5, 5 से एक कम 4, 4 से कम 3, मतलब बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, और तीनों का प्रोडक्ट 60 होना चाहिए और तीनों नंबर्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो पता है कि हम लोग जिस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और उसका आंसर 60 आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड का भी पैटर्न ऐसे ही है। नाउ लेट अस कंपेयर। बाय कंपेयरिंग we get, if you compare, let us compare first factor with first, second factor with second, third factor with third. In all the 3 cases
We are getting the value of n equals to 3 only. Check once. So do you need to show all three? No. कोई भी एक corresponding factors को corresponding समझ में corresponding को equalize कर दो, इनका वैल्यू 3 मिल जाएगा. कोई भी तुम्हारा चॉइस है. I hope it is clear, everyone. Now, let me make this point clear. We are using this method only, this shortcut method only, when we are solving the questions of factorial. If the same question was given in equation, I mean ये तो equation form में ही है, लेकिन ये equation को अगर यहाँ से दिया जाता तो ये तरीका से solve करके हम लोग को तीनों आंसर्स नहीं मिलेंगे, because तुमको पता है कि इस equation का डिग्री क्या है. What is the degree of this equation? 3. So you get how many values of n? 3 values. Why are we only getting, means why are we only satisfied with one value? Because the other two values are in either fraction or in negative. So had it been in this way, that question this way, that solve this equation, और इस तरीके से तुम solve करता तो तुमको सिर्फ एक ही आंसर मिलता. And what is that answer? 3. तो तुमको इस मेथड से solve करके तो तीनों आंसर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो आंसर मिलेगा, मतलब वो नेचुरल वैल्यू मिलेगा, मतलब n का नेचुरल वैल्यू मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा इनका आंसर. ओके, तो इसीलिए ये मेथड सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल में सिर्फ अप्लाई करना. बाकी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना होगा, सपोज यहाँ इस फॉर्म में अगर दिया रहता है इक्वेशन और लिखा रहता है सॉल्व फॉर n, और ये मेथड अप्लाई करेगा, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट दिस इज इनकम्प्लीट, बिकॉज द अदर टू वैल्यूज ऑफ n हैज टू बी कैलकुलेटेड इफ इट वाज इक्वेशन और तुमको बुला रहता सॉल्व फॉर n. समझ में आया बात? आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर. सॉल्व कर दे रहा हूं, एक सेकंड. एक बार सबको पहले कॉपी कर लो, और कॉपी करके सम नंबर, हाँ बोलो. मतलब आई डिड नॉट गेट, लाइक तुम बोल रहे हो पूरा मल्टीप्लाई करके और n क्यू प्लस वैसे आता और उसके बाद 60 को करते तो, लेकिन फिर n क्यू प्लस, लेकिन वो फॉर्म में दिमाग लगाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा. इट्स नॉट दैट इजी. ये वाला ज्यादा तुम प्रोडक्ट फॉर्म में इजी होगा. नाउ एवरीवन, c का नंबर, पहले c का ये जो है ना जितना सम्स है 2 से लेके 6 तक फटाफट करते हैं, बिकॉज एग्जाम में फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड बहुत सम्स आएगा, याद रखना तुम. तो ट्यूशन 5:30 बजे तक चलता है, आज से थोड़ी ना चलता है 5:30 बजे. ट्यूशन इज फ्रॉम 4 o'clock to 5:30. क्या हो गया? सी का सब करना है 2 से लेके 6 तक. What is your name? Just can you tell me? जिसका ट्यूशन 5 बजे. I think you have joined. अच्छा श्याम, वो जो तुम क्या बोलते हैं भक्ति नगर वाला ना? ना वो तो ट्यूशन तो 5:30 बजे तक है, 5:20 5:25 तक चलेगा ट्यूशन. तो ये तुमको तो मैंने उस दिन ही बताया था टाइमिंग. एटलीस्ट हाँ 2550. Your tuition timings are, you all know that it's Tuesday 4 o'clock, Thursday 4 o'clock, and Saturday 3:30. Every day the tuition hour is 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes. This way only we do. तुम अगर देखोगे तो अपना क्लॉक का टाइमिंग घड़ी का छोड़ो, जो मोबाइल का जो Zoom ऐप का, तो ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ही चलता है. मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट जाता है कभी कभी. Otherwise we do 1 hour 10 to 15 minutes. So it will go till that much time. No, you CBSE बैच का मैं गलती से वेबसाइट दे दिया होगा तुम लोगों को, वो गलती से दे दिया होगा. एक्चुअली तुम लोग ISC का है ट्यूसडे को 4 बजे,
थर्सडे को 4 बजे और सैटरडे को 3:30. Every day your class will be of 1 hour 10 minutes or 15 minutes like that. Okay, class थर्सडे को 4 o'clock 3:30. कुछ दिन बाद एकदम टाइम जो है ना क्लास एकदम टाइमली स्टार्ट मतलब एकदम टाइम पे स्टार्ट होगा. कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी एकदम थोड़ा 10 मिनट लेट हो जाता है 5-7 मिनट, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को. 3 और 4 का आंसर 1 मिनट. बाकी लोग बोलो तो जिसका आगे आंसर 3 और 4 का. 2 का 49 करेक्ट एकदम याद है. करेक्ट एकदम याद है मुझे 49. हाँ 3 का आंसर 3 है और 4 का 121. चेक कर लो. ना आई थिंक मुझे ना ना क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी जो n है देखो वहां पे मैं वो चीज समझा देता हूँ एक सेकेंड. n will be not negative. Simple. In simple word you can understand that किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है और फ्रैक्शन का. और 5 का आंसर क्या है बताओ तुम. यस सबका है 56. चेक करो तुम. तो 64 ही शायद करेक्ट होगा. एक बार देख सकते हो किसका आंसर. 2 का आंसर 49. देखो कोई हड़बड़ी नहीं है ठीक है ना, आराम से सॉल्व करो. इट डजंट मीन दैट मैं 5 बता रहा हूँ और कोई अगर 2 कर रहा है और तुम्हारा डाउट है तो तुम नहीं पूछ सकते. ऐसा कुछ नहीं है. मैं 5 बता रहा हूँ 2 किसी का अगर डाउट है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा तब हो गया ठीक है फिर. अच्छा नंबर 2 में किसी को डाउट है. सी का नंबर 2 में किसी को डाउट. आई थिंक सी का नंबर 6 में काफी लोगों को डाउट है शायद. आई थिंक बहुत लोगों को डाउट होगा शायद. तो बता दूं क्या मैं, अगर कर रहे हैं तुम लोग तो कंटिन्यू करो. पहले ट्राई. ओके पहले खुद ट्राई करो तो क्या होगा, इससे फायदा होगा. एक बार में मैं बता दूंगा इट्स नॉट गुड. आई एम नॉट इन हरी. एकदम आराम से जाएगी कोई दिक्कत नहीं है. और ना कोई भी ना थोड़ा ये एक तुम लोग से अभी रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में मत लिखना अभी ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो चैट बॉक्स में भी मत लिखना. मैं वो नहीं देखता हूँ वहाँ पे. तो सी का नंबर 2 डाउट है शायद किसी का, मैं देखा अभी. प्लीज जस्ट रिप्लाई वंस. किसी का डाउट है क्या सी का नंबर 2. कोई रिप्लाई नहीं. क्या बताओ. हम्म नहीं समझा मैंने. एन एन में रिपीट नहीं हुआ. आई डिड नॉट. अच्छा अच्छा तुम ये बोल रहे हो मतलब. अच्छा समझ गया ये बोल रहे हो तुम. एन 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 -1 ये वाला ऐसा बोल रहे हो तुम. दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग. नहीं नहीं ये तो ये फैक्टोरियल नहीं है ना, तो सिर्फ एन है. तो ये ऐसा नहीं होगा. एन का मतलब तो एन ही होता है, लेकिन एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है. एन एन-1 एन-2 टिल 1 प्रोडक्ट टिल 1. 56 या कुछ ऐसे आंसर था शायद. एक बार मैं कर देता हूँ. 121 121. सी का 4 का 121 है आंसर. ठीक है कर देता हूँ. हाँ बोलो. सी का 5 का है 56. 64 सॉरी 64. हाँ 64. सी ये 4 नंबर में हम लोग क्या करेंगे देखो. पहले
एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे 1 है 1 है, 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, इन दोनों में बड़ा ये है, तो पहले हम 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या है 1 बाई 9 फैक्टोरियल, सो व्हाट इज लेफ्ट 1 प्लस 1 बाई 10, टेक कॉमन आई मीन सॉरी एलसीएम ये, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 10, ओके, टेन प्लस 1 इज 11, ओके, नाउ वी कैन राइट, अब देखो 11 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी फैक्टोरियल लेंगे सब में बड़ा 11 फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखो, इसको कैंसिल कर दो, 10 10 भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 11 जा 121, दिस इज द आंसर, 5 है शायद, 5 कोई बोल रहा था, 5 आया, देख लेता हूं मैं एक बार फिर से, नाउ सी नंबर सी का 6, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली, ये बीच में ब्रेक हो रहा है थोड़ा, किस कोई और अगर ठीक से सुना तो मुझे बोलो, तो एक बार क्या बोलो, सुना नहीं मैंने, कैन यू हेल्प मी, नाउ सी सबसे पहला चीज, रेशियो अगर हटेगा, जैसे मान लो a is to b, a by b is to c by d, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ a by b into d by c, बिकॉज ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिकॉज रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, ओके, तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल बाई 2, 2 अलग है ठीक है ना, और ये अलग है, इनटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब बताना एक बार n माइनस 2 फैक्टोरियल में और n माइनस 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, n माइनस 2 है या n माइनस 4 बड़ा है, बताओ तो, n माइनस 2, अगर मान लो किसी को दिक्कत है मैं तुमको तरीका बताता हूँ, 2 और 4 से कोई भी एक नंबर ले लेना जो 4 और 2 से बड़ा है, जैसे 5, 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 2 इज 3, इसका मतलब ये बड़ा है, लेकिन समझ में आया, तो कोई भी एक नंबर ले लो 4 और 4 2 से बड़ा, 6 7 कुछ भी, एग्जांपल 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 2 5, मतलब ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है फैक्टर है उसको हम रिड्यूस करेंगे, कब तक रिड्यूस करेंगे, जब तक n-2 से एक कम कितना हो जाएगा, n-3, उससे एक कम n-4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टू टू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टी, ये भी 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू n-2 n-3, इसके बाद तुम्हारे पास दो चॉइस है, तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो और उसको सॉल्व करके n का 2 वैल्यू मिलेगा, जो नेगेटिव या फ्रैक्शन होगा उसको इग्नोर कर देना, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा मतलब नेचुरल नंबर उसको एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन मैं उस तरीका को नहीं फॉलो करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, देखो n-2 से n-3 क्या है, एक कम है, देखो n-2 इंटू n-3 में n-2 से n-3 एक कम है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, नाउ लेट अस कंपेयर, if we compare corresponding factors, the value of n is what, 5, और अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला तुम, सपोज
n का वैल्यू 5 भी मिलेगा, लेकिन 5 के अलावा जो एक और आंसर मिलेगा दैट विल बी ईदर नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, उसको इग्नोर कर देना और ये आंसर हो जाएगा। एक ही आंसर है लेकिन नहीं नहीं, दो आंसर आएगा ना, क्वाड्रेटिक में तो दो आंसर आएगा। either n equals to 0 or n equals to 5, 0 इग्नोर कर देना, बिकॉज 0 लेने से n, बिकॉज देखो जैसे मान लो सपोज 2:3 है, तो 2:3 का मतलब 2/3, a:b का मतलब a/b, a/b:c/d का मतलब क्या होगा, a/b/c/d, a/b/c/d मतलब क्या होगा, a/b इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। तो डायरेक्ट क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते a/b इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस। हाँ I'm really sorry, like your voice is not audible. Cannot hear anything. Others can hear. Can you just help me out? Others? हाँ, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं एक बार देख लूंगा, तुम आगे तुम व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, मैं तुमको बता दूंगा क्या है। आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस, आई थिंक लाइक n-5 इक्वल्स टू 0/n। आई थिंक यू आर सेइंग ऐसा कुछ बोल रहा था, मैं थोड़ा बहुत समझ पाया। तो 0/n इज 0, तो फिर n का वैल्यू 5 होगा, मैं ऐसे कुछ सुना था एक बार में, ठीक है। तो वो नहीं, एक्चुअली नहीं होता है वैसे, ठीक है ना, वो उस तरह से हम लोग नहीं ले जाते, वेरिएबल को नहीं ले जाते। लेकिन वही अगर मान लो 2n इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू 0/2 लिख सकते हैं, वेरिएबल को नहीं ले जाते वैसे, वो गलत होता है, वो तरीका गलत है। तब तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे देखो n-5 n-2 है, इसको नीचे ले गया मन, अपने मन के हिसाब से 0/n-5 0 हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया, जैसे नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग मेथड। Now next, now question number D, क्वेश्चन नंबर डी, ध्यान देना एक बार। ना डी का पहला सम एक बार मैं एक बार मॉक टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने को, लेट मी सी हु कैन डू दिस सम। बी का नंबर 1, ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे कोई हमको n का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है। गुड, ट्राई करो तो एक बार। जिसका ये हो गया, यू कैन ट्राई नंबर 3, डी का नंबर 3, डी का नंबर 3 यू कैन ट्राई। इज देयर एनीवन जिसको ये डाउट है वाले सम में, देखना एक बार। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। Now see, everyone, on the right hand side we have got n factorial plus n plus 1 factorial। तो ध्यान से एक बार नोट करना, मैं क्या करूंगा, क्या मैं n plus 2 को 1 plus n plus 1 लिख सकता हूँ?
Can I write n plus 2 as 1 plus n plus 1? Okay, because 1 plus n plus 1 is equals to n plus 2. Now, why I did this way? Why I've written n plus 2 in this way? Because n factorial into 1 becomes n factorial, see on the right hand side, plus n factorial into n plus 1. Now tell me, what is 5 factorial into 6? It is 6 factorial. 5 factorial into 6 is what? 6 factorial. 6 factorial into 7 is what? 7 factorial. Exactly same way, n factorial into n plus 1 is how much? Can I say that it is n plus 1 factorial? समझ में आया ना? देखो 5 factorial का मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1. इसके आगे 6 और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल के आगे 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 फैक्टोरियल. वैसे n फैक्टोरियल के आगे n plus 1 मल्टीप्लाई किया तो n plus 1 फैक्टोरियल हो जाएगा. Okay, this is what we have on the right hand side. Now try number 3D का. अच्छा एक बात बताओ, 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है? तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 कितना होगा बताओ तो? होगा 4 फैक्टोरियल. ओके, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 कितना होगा? 5 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ? दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर. जैसे देखो n प्लस 2 को मैंने ब्रेक किया 1 प्लस n प्लस 1, देखो क्योंकि 1 प्लस n प्लस 1 इज n प्लस 2. n फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n फैक्टोरियल हो गया. n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. Now you can try number D का number 3. ठीक. Now see, how I'm going to do this sum? Just everyone note down. देखो देख के लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा है नहीं, ध्यान देने का. बहुत सिंपल है. सबसे पहला चीज, इन दोनों में कॉमन क्या है? n फैक्टोरियल कॉमन. तो क्या बच जाएगा? 1 बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, नेक्स्ट. इन दोनों में देखो ये एक जैसा है, ठीक है? आई कैन नॉट कंपेयर दिस एंड दिस क्योंकि r फैक्टोरियल है, r माइनस 1 फैक्टोरियल है. इन दोनों में बड़ा कौन सा है? r फैक्टोरियल. तो क्या मैं लिख सकता हूं r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. और इन दोनों में बड़ा ये है. कीप दिस एज इट इज. Keep always the smaller term as it is and try to reduce the greater term up to the smaller term. तो यहाँ इन दोनों में बड़ा ये था तो इसको हम लोगों ने रिड्यूस किया यहाँ तक. ये रहा देखो, इन दोनों में बड़ा ये है. Keep this as it is and reduce this one.
If I reduce this, what is 1 less than n minus r plus 1? It is n minus r. अब ये दोनों में कॉमन क्या है बताओ? It is 1 by r minus 1 factorial into n minus r factorial. If I take r minus 1 factorial common in the denominator and n minus r factorial, what is left? It is 1 by r plus 1 by n minus r plus 1. ठीक है, यहां तक देख लीजिए. 1 by r minus 1 factorial into n minus r factorial कॉमन ले लीजिए दोनों में से. तो यहाँ 1 by r बचा, यहाँ पे 1 by n minus r plus 1 बच गया. Let us take LCM now. N minus r plus 1 into 1 is n minus r plus 1 plus r into 1 is r. R gets cancelled. So we have n factorial into n plus 1 divided by r minus 1 factorial into n minus r factorial into r into n minus r plus 1. So I repeat, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r इंटू n माइनस r प्लस 1. नाउ व्हाट इज n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1? बताओ तो ये क्या होगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है. एक बात बताओ, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r को क्या हम r फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बस यही तो देखना होता है ना कि 7 फैक्टोरियल में जो मल्टीप्लाई किया मैंने वो 7 से ज्यादा होना चाहिए. r माइनस 1 से ये ज्यादा है कि नहीं? देखो देखो, r फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं? and n minus r factorial into n minus r plus 1 is n minus r plus 1 factorial. I repeat once again, as n factorial into n plus 1 is n plus 1 का factorial. n minus 1 factorial into n is n factorial. Exactly same way. n factorial into n plus 1 is n plus 1 factorial. r minus 1 factorial into r will be r factorial. n minus r factorial into n minus r plus 1 is this one. This is what we have on the right hand side. Now today I आज क्या चाहिए?